हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सीटेट का क्वेश्चन पेपर सेकंड और इसमें हम करेंगे आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज। आइए डिस्कस करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन कोड नंबर F और क्वेश्चन की बुकलेट का नंबर है, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट का नंबर है 21108555। Coming to the questions, that is unseen passage. Read the passage given below and answer the question 91 to 99 that follow. Colors have a deeper significance for a home than one can imagine, for if used night they can give a perfect look in today's time when there is an abundance of everything but space. Color plays an important role in creating the right ambience and perhaps the space that you crave for. Besides having tremendous potential to create mood through sheer appeal to the senses, right use of colors actually helps you create the spacious feeling. For instance, instead of using a plain monotonous colors on all four walls, if you get a little imaginative, perhaps a little bold, you can create a sense of space within those four walls. One of the ways would be to blend light and dark colors, or to paint two opposite sides in a lighter shade than the other two. Color can add the height of your room too. For instance, if the room is painted white and the upholstery of your furniture is in deep blue tone, the false ceiling could be painted in light blue shade. Think out of the box to give even more interesting effects to your room. Whatever your choice is, there are options in the market to help you realize your needs. These days, you get special patterned stencils to decorate walls with interesting patterns like flowers, leaves, birds, etc. Some people draw an entire scenery on one side of the wall to give the feeling of bringing the outdoor inside. The choices are many, so are the creative ways. Just let your imagination flow. Every room reflects the personality of the occupant, hence it is important to pay attention to every detail. Your walls are your canvases, freshly painted and bare. Go ahead, splash colors and watch the effect unfold. प्रिय विद्यार्थियों, देखिए क्या है, ये जो पैसेज है आपके घर के बारे में है। ये बताता है कि आपका जो मकान है उसमें पेंट किस ढंग से किया है, तो उसका जो इम्प्रेशन है आपकी पर्सनालिटी पे भी पड़ता है और आपके माइंड पर भी और आपके घर की सजावट पर भी, उसी के बारे में बताया गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे हैं। फर्स्ट, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस। कलर इफ यूज क्रिएटिव कैन गिव द परफेक्ट लुक ए रूम. Space is abundant nowadays. The right color combination on walls and the roof creates a spacious feeling. So, option B and C are correct. A is incorrect. A, B and C are all correct. A and C are incorrect. B is correct. A and C are incorrect. B is correct. देखिए क्या है, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट. सो देखिए, कलर इफ यूज्ड क्रिएटिवली कैन गिव द परफेक्ट लुक टू ए रूम. स्पेस इज अबंडेंट नाउडेज. सी, द राइट कलर कॉम्बिनेशन ऑन वॉल्स एंड द रूफ क्रिएट्स अ स्पेसियस फीलिंग्स. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड. ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट. Which one? Space is abundant nowadays. So going to question number 91, that is the word opposite in meaning to the underlined word in the given sentence. Right use of the color actually help you create in the spacious feeling. Spacious feeling means special. What it is? Special. Answer goes to option number third. Now going to question number 93. As mentioned by the writer in para 1
In today's time, what is modern day homeowner longing for? Longing for space, imagination, sheer appeal, colors. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है घर में? स्पेस के लिए. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 94. That is, identified the part of speech of the underlined words in the sentence given below. Right use of colors actually help you create the spacious feelings. What does it mean? Spacious feelings. Feelings noun है और spacious क्या है? Adjective है. तो देखिए क्या है इसमें आपका आंसर फीलिंग्स नाउन है और स्पेसियस क्या है? एडजेक्टिव. ये पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है हमारे से, तो आंसर किस में जाता है देखते हैं. फीलिंग्स नाउन, नाउन लेकिन ये एडवर्ब है. वर्ब नो, वर्ब एडवर्ब, कंजक्शन एडवर्ब. देखिए क्या है, फीलिंग्स क्या है आपकी? नाउन. फीलिंग्स नाउन. स्पेसियस, व्हाट इट इज? स्पेसियस. स्पेसियस मीन्स एडजेक्टिव. सो इसमें वैसे यहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए था. ठीक है, सो हम इसको नियरेस्ट को क्या काउंट करेंगे? आंसर एडवर्ब एंड नाउन वाले को. स्पेसियस फीलिंग्स. ठीक है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है. क्या है ये? एडवर्ब. और स्पेसियस फीलिंग इसको एक वर्ड बना दिया उसने. कैसे ट्रीट हुआ है ये? नाउन के रूप में. किसके रूप में हुआ है? नाउन के रूप में. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फोर्थ. एक्चुअली और फीलिंग्स, that is adverb and noun. Now coming to the next question, that is 95. According to the writer, it is important to pay attention to the color scheme of your home because it reflects the personality of the owner. The walls reveal the secret of your life. No. The monotonous shade add life to the rooms. No. The ambience created makes it look. No. So answer goes to option number 1. This is the right answer. It reflects the personality of the owner. Yes, जो मकान के अंदर रह रहा है, घर में रह रहा है, उसका कैसा माइंड है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स कैसी है पेंट के बारे में, वो सब हमें पता चलता है. नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96. Mentioned by the writer in para 2 some ways by which you can break monotony. मोनोटोनी का मतलब क्या होता है? निरस्ता. रूमीज. बाय ब्लेंडिंग लाइट एंड डार्क शेड्स, पेंटिंग ऑल द फोर वॉल्स इन प्लेन. ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें? बाय ब्लेंडिंग लाइट एंड डार्क शेड्स, ये तो सही हुआ, लेकिन पेंटिंग ऑल द फोर वॉल्स इन प्लेन कलर, नो. तो 1 is correct but not second. So answer goes to option number 4. Next, question number 97. Complete the given word analogy. अब आपको बताना है कि कौन सा वर्ड मिलता जुलता है. मोनोटोनस का मतलब क्या हुआ? नियरेस्ट, डल, एम्बियंस. तो एम्बियंस का मीनिंग क्या जाता है यहाँ पे? एनवायरमेंट से, वेदर से. तो आंसर क्या है यहाँ पे? वेदर. To think out of the box does not mean to think. To think out of the box does not mean about ideas in usual. To think out of the box does not mean to think. यदि बॉक्स से बाहर सोचने का मतलब नहीं है. क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेटिव, ट्रेडिशनली. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3. ट्रेडिशनली नहीं है दिया है, तो कैसे सोचता है वो? क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिव. नहीं के लिए क्या आएगा? ट्रेडिशनली. अबाउट नोवेल आइडियाज करेक्ट है. इन यूजुअल वेज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो कैसे नहीं सोचता है वो? ट्रेडिशनली. नेक्स्ट, गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 99. सम पीपल ड्रा कलरफुल सीनरीज ऑन देयर होम्स वॉल टू गिव ए डीपर सिग्निफिकेंस their homes, to
to give a deeper significance to their home? No. Blend dark and light? No. Create a sense of space? Bring nature into their homes? Yes. देखिए क्या है, फीलिंग महसूस कर रहा है राइटर, क्या करवा के अपने कमरे में सारी की सारी जो चीजें हैं, जैसा कि उसको फील हो रहा है कि वो फॉरेस्ट में है या गार्डन में, बगीचे में, उस तरह से फील. ब्रिंगिंग नेचर इनटू देयर होम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, next it is stanza, small poem. Read the poem given below and answer the questions. Look here, between my finger and my thumb the square pen rests, snug as a gun. Under my window a clean rasping sound when the spade sinks into the gravelly ground. My father digging, I look down till this staining rump among the flower beds, bends low, comes up 20 years away, stooping in rhythm through potato drills where he was digging. The coarse bush nestled on the lug, the shaft against the inside knee was levered firmly. He rooted out tall tops, buried the bright as deep, to scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands. देखिए क्या है, ये ब्यूटीफुल पोएम है. इट इज रिटन बाय सीमस हीने इन 1939. ये इस पोएम में जो पोएट है वो अपने पिताजी के रिलेशन के बारे में बताता है कि किस तरह से वो मेहनत करते थे और कितनी मेहनत करने के बावजूद वो खेतों में काम करते थे और उसी से उनका गुजारा होता था. और फादर्स की जो फीलिंग है, फादर के लिए जो फीलिंग्स है पोएट की, बहुत अच्छी सिंपैथेटिक फीलिंग्स हैं, सहानुभूतिपूर्ण क्या है, भावनाएं हैं पिताजी के प्रति, और उन दोनों का ही संबंध के बारे में बताया गया है. तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है राइटर, एग्जामिनर हमारे से कैसे क्वेश्चन पूछता है. द पोएट डिवाइस इन लाइन 2 एंड लाइन 4 हाइपरबोल एंड मेटाफर. Yes, the poetic devices in line 2 and 4 are simile and alliteration, metaphor and personification, metaphor and simile. तो देखिए बेटा इसमें पोएम में क्या है, simile and alliteration, simile and alliteration, simile and alliteration. तो बार बार क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो रेपिटेशन हुआ है वर्ड्स का, ठीक है, simile and alliteration. लाइक का प्रयोग हुआ है, एज का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, सिमिली. नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम, पिटीफुल एंड सिंपैथेटिक? नो, इट इज नॉट. डिसगस्ट एंड एनिमोसिटी? नो. अनॉयंस एंड एंगर? अनॉयंस एंड एंगर का तो काम ही नहीं, गुस्सा तो कहीं है ही नहीं. नॉस्टैल्जिक एंड एडमायरेशन? नॉस्टैल्जिक क्या है, जो पोएट है उसकी अपने पिताजी के लिए क्या थी, भावना थी, और उसको वो याद आ रहे हैं अपने पिताजी, तो नॉस्टैल्जिक हुआ. एडमिरेशन का मतलब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरह से वो काम करते थे. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3. नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 102. 102 यहाँ पे वो कैप दिया गया है, वो कैप का देखते हैं क्या है एनालॉजी. कोर्स, रफ, घटिया, स्नग, डैश, ठीक है, स्नग मीन्स आरामदायक, तो क्या आना चाहिए सिनोनिम, कंफर्टेबल. क्या आना चाहिए, कंफर्टेबल. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, डैश लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड्स. व्हाट इज द स्पीकर रेफरिंग टू द गिवन लाइन? किसके बारे में बता रहा है? द हैंडल ऑफ द स्पेड? नो. द पोटैटोज ड्रिल? नो. द गन? नो. सो पोटैटोज, जब उनके पिताजी क्या है, आलू को खोद के डिग करके, जो पोएम है हमारी उसका क्या नाम है, द डिगिंग. क्या है पोएम का नाम, द डिगिंग. तो उसको ये निकालते हैं आलू को, और आलू क्या होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं और ठंडे होते हैं, ठीक है, जब वो निकालते हैं उनको.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104. इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट ऑब्जर्विंग, ठीक है, जो खिड़की में से बैठे हुए जो पोएट है किसको देख रहे थे? खिड़की में से अपने पापा को, ठीक है, क्या करते हुए? खेत में काम करते हुए. और वो क्या कर रहे थे? आलू को निकाल रहे थे क्यारियों में से. His father digging potatoes. This one is the option, right option. Farmer in the field, farmer से कोई मतलब नहीं है. Potato grower से कोई मतलब नहीं. तो रिलेशन पोएट का किसके साथ था? अपने फादर का. हाउ डज द स्पीकर फादर फील अबाउट सन चॉइस ऑफ करियर? देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, चीजें स्पष्ट नहीं है इसके अंदर. हाउ डज द स्पीकर्स फादर फील अबाउट हिज सन चॉइस करियर? He wishes his son choose a more practical path. He is glad his son is not a farmer. He is ambivalent towards the choice. ठीक है, he is ambivalent towards the choice. The poem does not make clear. तो वैसे तो पोएम में कहीं पता ही नहीं लगता है, ठीक है, और he is ambivalent towards the choice, ठीक है. जो भी पोएट की चॉइस होगी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन बने, फार्मर बने या कोई शिक्षक बने, तो वो उसकी चॉइस है, उसको वो ज्यादा क्या है, मतलब उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहेंगे. तो आंसर गोज टू ही इज एम्बिवेलेंट टुवर्ड द चॉइस. नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल रेफर टू. तो हमारी क्या है यहाँ पे पेडागोजी शुरू होती है ये, ठीक है. ऑथेंटिसिटी मटेरियल रेफर टू materials written or developed by people in authority, material written or developed in a real life content, material which children bring from home, material written by the teacher for her class. तो देखिए बेटा इसमें जो आंसर है आपका ये है ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? वास्तविकता. Material written or developed by people in authority, material written or developed in real life content, material which children bring, ये तो बिल्कुल नहीं है. Material written by the teacher for her class, no. तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी रहेगी? दो, फर्स्ट एंड सेकंड. Material written or developed by people in authority, no. Materials written or developed in real life content, ठीक है. तो वास्तविकता क्या है? रियलिटी. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 107. विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज रिसेप्टिव स्किल्स? रिसेप्टिव स्किल कौन सी है? प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है? तो हमारे से पूछा गया है कि रिसेप्टिव स्किल रीडिंग एंड स्पीकिंग, reading and speaking, no. Listening and reading, speaking and writing, no. Listening and writing, no. So answer goes to listening and reading. Listening में जो भागीदारी है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, सुनना पड़ता है. रीडिंग में भी वो किसी से लिखा हुआ मटेरियल है उसको पढ़ता है. तो प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, ये कौन सी स्किल है? रिसेप्टिव स्किल, जिसको ग्रहण करता है केवल. Aparna, a learner of class 5th, understand that listening involves listening to a sound, words, then sentences to get meaning of the speech or an audio. Which approach strategy she believes in for learning to listen? Bottom approach, both top down and bottom approach. It is neither top down nor bottom approach, top down approach. तो आंसर गोज टू बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 109. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन द स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज? Study of foreign language included as one of the language under 3 language formula.
Foreign language does not include in the three language studied under three language. Third, French is one of the language recommended to be studied as an additional. तो तीनों ये लागू नहीं होता, लेकिन फोर्थ में क्या है, स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एज एन additional optional during the secondary stage. Yes, this is right answer. So answer goes to option number 4. Now next question. Many Indians who go abroad for jobs learn the language of the place. What is this motivation? तो ये motivation कौन सा है? बहुत सारे जो लड़के हैं हमारे, लड़के लड़कियां फॉरेन में जाते हैं पढ़ने, तो ये कौन सी मोटिवेशन है? देखिए क्या है, instrumental motivation. It is neither instrumental nor integrative motivation, both integrative and instrumental. No, integrative motivation. Integrative motivation क्या है कि भी जो विद्यार्थी विदेश में गया है और वहां पे उसको एक प्रॉपर टाइम में रह के क्या करना है, वहां पे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, तो ये इंटेग्रेटिव मोटिवेशन होगा वहां की लैंग्वेज को पढ़ना. क्या होगा? Integrative. Next question number 111. Here is a text some statement. Find out which language register does. Language register का मतलब होता है बेटा कि ये भाषा किन लोगों के द्वारा बोली गई है, इसमें किस तरह के लोगों की ये भाषा है, उसको हम लैंग्वेज रजिस्टर बोलते हैं. डॉक्टर की भाषा अलग होती है, ठीक है, सोल्जर्स की अलग होती है, होटल में काम करने वालों की अलग लैंग्वेज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज रजिस्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लैंग्वेज रजिस्टर. तो देखिए क्या है, दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. दिस इज नॉट टू से दैट inequity cases to exist. It doesn't, but at least the democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. देखिए क्या है यहाँ पे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस किसकी बात की गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस किसकी बात की गई है बेटा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका विषय है? सोशल साइंस रजिस्टर नो, साइंटिफिक रजिस्टर नो, पॉलिटिकल रजिस्टर नो, थोड़ा सा है इसमें, हाफ है लेकिन पूरा नहीं है. लीगल रजिस्टर यस. तो देखिए क्या है, सारी बातें किससे रिलेटेड हैं? लीगल रजिस्टर से. यहाँ पे पॉलिटिकल रजिस्टर थोड़ा सा भाग है, पूरा भाग नहीं है. पूरा भाग किसके अंदर आता है? पूरे मीनिंग लीगल रजिस्टर के अंदर. तो देखिए क्या है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ डायलेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज. जो लैंग्वेज होती है उसके डायलेक्ट के बारे में क्या है, देखिए, स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट ऑफ वन लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड द अदर डायलेक्ट स्पीकर. अ डायलेक्ट इज ए बिगर कैटेगरी एंड लैंग्वेज इज ए स्मॉलर. नो, गलत हो गया. तो सम डिफरेंट सोशल ग्रुप में स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट ऑफ द सेम लैंग्वेज. डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. यस, डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र की मतलब अपनी तरह की भाषा. देखिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है गांव गांव में बदले पानी कोस पे वाणी, तो उसी तरह से ये आप समझेंगे इसको, जो डायलेक्ट है वो हर गांव का अलग हो जाता है. तो वो कैसे होता है? रीजन वाइज होता है. कैसे बदलता है डायलेक्ट? यानी कि हर जगह के अनुसार. तो डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. यस, दिस इज द मेन. यदि कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज डायलेक्ट के बारे में आता है तो डायलेक्ट का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? रीजन. रीजन का मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रवाद. क्या होता है? क्षेत्रवाद, यानी कि कोई एरिया. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 113. Which of the following tasks promote integrated learning skill? Integrated learning skill, जो हमारी कौशलताएं हैं वो किस में है? इंटेग्रेटेड, प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्ले, राइटिंग एन आर्टिकल, असाइनमेंट. देखिए जो असाइनमेंट है वो क्या करता है, उसके अंदर सारी चीजें शामिल है. तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू नोइंग अबाउट लैंग्वेज? नोइंग अबाउट लैंग्वेज, प्रोसीजरल नॉलेज, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी, ग्रामेटिकल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज. तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू नोइंग अबाउट लैंग्वेज? ग्रामेटिकल नॉलेज. क्या होगा वो?
grammatical knowledge, declarative knowledge, no. So coming to question number 115, a teacher of class 5th does a warm up activity to connect their previous knowledge and experience with the text they would read. She asks her learners to look at the illustration of the reading text, that is story. क्या कहती है वो स्टोरी पर ध्यान से देखें. बिफोर शी बिगिंस टू टीच द टेक्स्ट, व्हाट डज शी वांट्स लर्नर टू डू. क्या चाहती है? अप्रिशिएट द इलस्ट्रेशन, मेक प्रेडिक्शन अबाउट द रीडिंग, कोई भविष्यवाणी करना चाहती है. मेक देम अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन, चित्रों को समझने के लिए कहती है. विजुअलाइज द स्टोरी थ्रू द इलस्ट्रेशन. यस, दिस इज द राइट चॉइस. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. Next, going to question number 116. Which of the following language is not a classical language? देखिए क्या है, कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल नहीं है. देखिए क्या है, तेलुगु, तमिल. तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की. और फिर क्या है, तेलुगु, यस ये भी ओल्डेस्ट है. और उसके बाद क्या है, संस्कृत. तो हिंदी कोई क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3. Now coming to question number 117, a continuous record of instance of learning by the learner is known as continuous comprehensive assessment. A continuous record of instances learning, यानी कि जो बच्चा सीखता है, स्टूडेंट सीखता है, उसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, लर्निंग का, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोफिशिएंसी असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पोर्टफोलियो. देखिए तीनों चीज क्या है, ये अलग अलग हैं, एक ही एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस कंप्रीहेंसिव CCA, ठीक है. सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन जिसको बोलते हैं मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, दैट इज कंटिन्यूस कंप्रीहेंसिव असेसमेंट. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1. Next, question number 118. What is the following strategy in the context grammar teaching known as introducing language item in context, making learners notice the language items, enabling them to use in real life context, and drawing the attention of the learners to the forum by discovering it. देखिए कौन कौन सा इसमें डिस्कवरी मेथड्स, डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड्स, क्रिएटिंग स्कीमा और कॉन्शियसनेस राइजिंग, डिडक्टिव मेथड. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1, डिडक्टिव मेथड. देखिए क्या होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड. इंडक्टिव में क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस लेते हैं हम, लेकिन डिडक्टिव में क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है प्रीवियस नॉलेज के बेस पे होता है. ठीक है, तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट इज द सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंसी इन लैंग्वेज लर्निंग. लैंग्वेज लर्निंग में क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दैट लैंग्वेज हैव ए ग्रामेटिकल सिस्टम, understanding that all languages have common structural system, no. Understanding that all human have systems of many languages, no. Understanding and applying that language works as a system. Understanding and applying that language work as a system. लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा, what is a system competency in language learning. भाषा को सीखने में सिस्टमिक कंपिटेंसी क्या है. तो देखिए सिस्टमिक जो कंपिटेंसी है, सक्षमता, ठीक है, वो क्या है आपकी, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दैट लैंग्वेज हैव ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सॉरी ग्रामेटिकल सिस्टम, यानी कि किसी भी भाषा के लिए उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना, सिस्टम होना आवश्यक है. So answer goes to option number 1. Next, a teacher of class 6 develops the following task for speaking activity. That is it speak 5 sentences about desert and its climatic condition.
Is it a good task or not good task? Select the from option your response and reason for the same. It is a good task because it makes the learner to talk about something that is desert. ये भी ठीक है थोड़ा सा. It is not a good task because some of the learners may not know about the desert. ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है. It is not a good task because it lacks context as there is no input for speaking about desert and its condition. Yes, ये भी बात ठीक है इसकी. It is a good task because the learners may have studied about desert in their geography class and will have inputs to speak. Yes, देखिए क्या है, ये जो ऑप्शन है फुली क्या है, कंपिटेंट ऑप्शन है. इसमें सारी बातों के क्या है, आंसर निहित है. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4th. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, अब हम आप पहुंचे हैं लैंग्वेज सेकंड. व्हाट इट इज लैंग्वेज सेकंड. तो देखिए इंग्लिश की लैंग्वेज सेकंड के हमारे पास क्या है, पैसेज है एक यहां पर. तो उसके क्वेश्चंस हैं, पढ़ते हैं फास्ट. सराउंडेड बाय verdant forest, natural springs and blue hills, Netarhat is Jharkhand's best kept secret, located in the district of Latehar at distance of about 151 km from the capital city of Ranchi. This quaint hill station brings solace and gives the visitor much deserved refuge from the hustle and bustle of cities. It is located at an altitude of 3696 feet, allowing people to enjoy magnificent views, fabulous sunrise and stunning sunsets. Leave the visitors awestruck. Explore the surreal beauty of this beautiful place, also known as Queen of Chota Nagpur, and return refreshed and rejuvenated with its smearing waters, sparkling reflection, cool air and breathtaking scenery. Netarhat Lake offers serenity to its visitor. It is an ideal spot for picnics, and the lake's tranquil waters tempt you to go boating as well. Get closer to nature with the most beautiful forest in Jharkhand, and this pines forest. Netarhat, with its pretty lakes, shady valleys, mountain villages, and thick evergreen forest filled with gorgeous pine trees, provides panoramic scene to the visitors. The pine forest, surrounded by mist in winter, make any traveler feel as though they have been transported in another world entirely. The most well-known location is Sunrise Point, which offers a spectacular view of the sunny that resembles an oil painting. Visitors cannot help but be struck by sun's rays as they emerge from valleys covered in lush vegetation and cluster of tall trees. The most picturesque view of the sunrise is visible from Hotel Prabhat Vihar, situated 17 km from Bazaar Hut. Netarhat certainly is a perfect gateway in the heart of nature. Guest houses provides cozy accommodation and a heavenly dining palette to its visitors. तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक हिली स्पॉट के बारे में, हिली जो प्लेस है, जगह है, उसके बारे में बात किया गया है. ठीक है, और ये जो जगह है छोटा नागपुर में है. कहां पे है? छोटा नागपुर में है. और ये काफी सुंदर है और मनमोहक है, सभी यात्रियों को क्या है, अपनी तरफ आकर्षित करती है. राइटर ने इसको चुना है पैसेज को क्वेश्चंस के लिए. देखते हैं इसमें क्या पूछता है राइटर हमारे से, यानी कि एग्जामिनर क्या पूछता है. द फ्रेज हसल एंड बसल. द फ्रेज हसल एंड बसल. हसल एंड बसल का मतलब क्या होता है? क्राउडेड प्लेस. क्राउडेड क्या होता है? क्राउडेड प्लेस.
Stunning sights and scenes of cities, peace and calm of cities, busy and noisy cities. तो हसल बसल का मतलब क्या हुआ? क्राउडेड प्लेसेस जहां पे भीड़ भाड़ होती है, बिजी एंड नॉइजी सिटीज, ब्यूटी एंड आई कैचिंग व्यूज ऑफ सिटी. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दैट इज नेटार हट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 3696. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट, इट इज रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर. ये भी बात ठीक है. नेटार इज ब्लेस्ड विद वर्डेंट बनियान फॉरेस्ट. देखिए क्या है इसमें, ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है. ठीक है, तो आंसर किस में जाएगा? ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बट सी इज इनकरेक्ट. So answer goes to option number second. Now coming to question number 123. Identify the parts of speech of the underlined words in the given sentence. जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को बताना. देखते हैं. सनराइज क्या है? ये सनराइजेस एंड स्टनिंग सनसेट्स लीव द विजिटर ऑब्स्ट्रक. क्या है? ऑब्स्ट्रक. तो देखिए क्या सनराइज क्या है? ये नाउन है. क्या है ये? नाउन. और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फोर्थ. फर्दर क्वेश्चन नंबर 124. क्वेश्चन नंबर 124. द सनराइज पॉइंट ऑफर विजिटर ए ब्रेथिंग व्यू ऑफ. कैसा व्यू देता है सनराइज? ठीक है. द सनराइज पॉइंट ऑफर विजिटर ए ब्रेथिंग व्यू ऑफ एन ऑयल पेंटिंग, लस वेजिटेशन, बोथ ए एंड 3, बोथ 1 एंड 3. तो देखिए क्या है? द सनराइज पॉइंट ऑफर विजिटर ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ. किसका दृश्य मिलता है? सबसे पहले क्या किसके दर्शन होते हैं वहां पे? सनराइज के. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1. विच वन ऑफ द फ्लोइंग सैनिक व्यूज इज नॉट फाउंड इन नेटार हट. क्या नहीं है वहां पे नेटार हट के जंगल में? ब्यूटीफुल सनराइजेस एंड सनसेट ये है. ठीक है. सिंटिलेटिंग व्यूज ऑफ सनराइज है. क्लस्टर ऑफ टॉल पाइन ट्रीज ये भी है, लेकिन रिफ्यूजीज कैंप ये नहीं है. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. देखिए क्या है, इन्होंने आंसर क्वेश्चन किस ढंग से पूछा है? नोट के रूप में. इसके पूछे में क्या नहीं है वहां पर? तो ये रिफ्यूजी कैंप नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126. एज मेंशन्ड इन पैरा 1, द क्वेंट हिल स्टेशन, जो हिल स्टेशन नेटार हट है, गिव्स पीस एंड काम टू द विजिटर बिकॉज दे कैन गो फिशिंग. कोई मैटर नहीं है फिशिंग वाला. दे कैन गो एंजॉय ट्रेन राइड्स, वहां पे ट्रेन है ही नहीं उसके अंदर. दे कैन गो पैराग्लाइडिंग फ्रॉम द हिल टॉप्स, नो. दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ, यस. दिस इज मोस्ट स्टेबल ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 126. नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज 127. कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी. यहाँ पे आपको देखना है जो वर्ड दिया गया है सिनोनिम है या एंटोनिम. क्या पूछा गया है? गॉर्जियस. गॉर्जियस क्या है? ब्यूटीफुल. और ट्रैंक्विल क्या है? ट्रैंक्विल. तो ट्रैंक्विल का क्या बनेगा? चौपी, ब्लू ग्रीन, मिस्टी, नो, पीसफुल. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, द अंडरलाइंड वर्ड in the phrase this quaint hill station brings solace implies. Solace implies इसका मतलब क्या है? It makes you visit the place year after year. कोई रेलिवेंस नहीं है. It evokes curiosity, थोड़ा सा ठीक है, %, आधा, यानी कि it brings peace and comfort. It makes you breathless, no, ये नेगेटिव हो गया. तो दो ऑप्शन हमारे पास ठीक है. It evokes curiosity, तो क्यूरियोसिटी का पॉइंट क्या है? काफी कम है, लेकिन इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट. सो आंसर गोज टू दिस ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 129 and 135 that follow.
It was Somi's idea that we met at the pool in 10 years time. When we are men, we must come back to this place 10 years from today, he said Rusty A. Maddie on 5th April 1964. We must return to the pool no matter where we are or what we are doing. Promise. It was a schoolboy's place and made in deadly earnest. A boys we usually mean the things we say, and so we shook hands on it and dived back into the water. The pool had been discovered by me a few months earlier. I remember that it was going to rain. I could see the rain moving across the foothills and I could smell it on the breeze. But instead of turning homewards, I pushed my way through the leaves and brambles that grew across the forest patch. I had heard the murmur of the water and I wanted to see and touch it. Sliding down the rock face into small ravine, I found a stream running over a bed of single water trickled down from hillside from amongst ferns and grasses and wild primroses. The rocks beside the stream were smooth and some of them were grey and some yellow. A small waterfall came down the rocks and formed a deep pool of apple green water. When I saw the pool, I ran back to town to tell others. Anil and Somi were my closest friends. Anil lived in a crowded lane of Dilaram Bazaar. Dilaram Bazaar में रहता था अनिल. He was wild and a little dangerous, subject to moods and impulses. उसके मूड की ऊपर डिपेंड होता था कि वो बात मानेगा या नहीं. Somi was sensitive and gentle in his ways, but common with Anil, he had a sense of fun and a instinct for adventures. तो सोमी थोड़ा सा क्या था, अनिल जैसा था, मिलता जुलता, लेकिन वो सेंसिटिव था उससे. द पुल वॉज माई ओन डिस्कवरी एंड आई वॉज प्राउड ऑफ इट. और जो तालाब उसने खोजा था लड़के ने, तीसरा लड़का है जो, ठीक है, वी कॉल इट रस्टी पुल. और हम इसको कैसे पुल कहते थे, कैसा तालाब बोलते थे, रस्टी पुल. सेड सोमी. ये किसने कहा, सोमी ने कहा. तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछता है एग्जामिनर इसमें से. व्हाट ब्रॉट द थ्री बॉयज टुगेदर, देयर चाइल्डहुड मिसचीफ्स, देयर चाइल्डहुड मिसचीफ्स, देयर स्विमिंग टैलेंट्स, देयर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, थोड़ा सा सही है, देयर अर्नेस्ट एटीट्यूड्स, ये बिल्कुल सही है. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, coming to the next questions, that is question number 130. Who among the three friends proposed the idea of meeting the pool 10 years hence? किसने जो आइडिया है प्रपोज किया था, ठीक है, आइडिया किसने दिया था, सोमी ने. डैश ए प्लेस मेड डेडली अर्नेस्ट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, अ प्लेस मेड इन डेडली अर्नेस्ट, एक तीव्र इच्छा में क्या है, प्रण किया गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ए प्रोमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस, a promise in complete seriousness. Next, identify the part of speech, the underlined words in the given sentence. Identify the part of speech of the underlined words. तो underlined words क्या है, he was wild and little dangerous, subject to mood and impulse. तो देखिए क्या है, ये क्या है आपके, wild means क्या होता है, जंगली, adjective, और dangerous का भी क्या होता है, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव किस में, फर्स्ट में, सो आंसर ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 133. क्वेश्चन नंबर 133. सो विच वर्ड कैन बी द नियरेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इंस्टिक्ट. इंस्टिक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टिक्ट मीन जन्मजात गुण, ठीक है. तो देखिए क्या है यहाँ पे, प्रीमोनिशन, पूर्व निर्धारित, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पूल इन स्ट्रीम. ट्रिकलिंग वाटरफॉल डाउन द रॉक्स, यस. एप्पल ग्रीन कलर ऑफ द वाटर, नो, एप्पल ग्रीन नहीं था. वाटर ट्रिकलिंग अमंग फर्न एंड ग्रासेस, ठीक है. रफ रॉक्स ऑन द बेड, यस. तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पूल. रफ रॉक्स ऑन द बेड थी, water trickling among the ferns, yes. Apple green color of the water, yes.
तो ये तीनों चीजें थी वहां पर, लेकिन ट्रिकलिंग वाटरफॉल डाउन द रॉक्स ये नहीं था। तो आंसर गोज टू, देखिए नोट के बारे में पूछा है इसमें, किसके बारे में पूछा है, नोट के बारे में, तो ये तीनों चीजें थी, फर्स्ट नहीं था। कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी गिवन बिलो, क्राउडेड, डिजर्टेड। क्राउडेड का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये क्राउडेड का ऑपोजिट है डेजर्टेड। वाइगर का मतलब क्या होता है, ताकतवर, तो इसका क्या हो जाएगा, वाइगर फुल ऑफ विटालिटी होता है वाइगर का, तो इसका मीनिंग हो जाएगा लेथर्जी। क्या हो जाएगा बेटा, लेथर्जी। तो ऑप्शन गोज टू, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड, this is the correct answer. So next question, that is 136. Kripa and Karan are twins and speak a particular dialect of Manipuri. What they speak, Manipuri dialect, however they differ in their speech, लेकिन फिर भी उनकी स्पीच क्या है, अलग है। What is their individual special way of speaking the dialect known as? तो उनकी बोली को हम क्या कहेंगे, डायलेक्ट तो ठीक है, चलिए स्पीच एक्ट भी ठीक है, मणिपुरी ठीक है, आइडियोलेक्ट बोलेंगे हम, आइडियोलेक्ट, यानी कि एक डायलेक्ट में ही क्या है, दूसरा डायलेक्ट है। वो किस वजह से है, थोड़ा सा भाषा का क्या है, उसका दूसरे बच्चे का बोलने का स्टाइल क्या है, अंतर है, तो उसको क्या बोलेंगे, इडियोलेक्ट, इडियोलेक्ट, आइडियोलेक्ट भी बोल देते हैं इसको। अदिति नोन एज रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल पता है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न होता है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए अदिति को क्या है, रूल के बारे में पता है, लेकिन बट कैन नॉट यूज कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकती वो। वट नॉलेज डज सी पोजेस, तो कैसी नॉलेज है उसके पास, यानी कि पता तो है उसको, डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नहीं, गलत है। प्रोसीजरल नॉलेज नो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नो, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है। लर्नर अंडरस्टैंड्स एंड अप्लाइज दैट लैंग्वेज वर्क एज ए सिस्टम, लैंग्वेज, learner understands and applies that language work as a system. Systemic competency, strategic competency, social linguistic competency, communicative competency। तो देखिए क्या है, लैंग्वेज क्या है, सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमिक competency। So answer goes to option number first. Next question number 139. A teacher of class 7th wants her learner to read the short text with an understanding of power and identity of the people and community presented in the text. What does the teacher aim to promote among learners? देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं पैसेज से नहीं है, ये पेडागोजी से क्वेश्चंस है, इंग्लिश पेडागोजी से। तो देखिए क्या है, A teacher of class 7th wants her learner to read the short text with an understanding of power and identity of the people and community presented in the text. What does the teacher aim to promote among learners? Critical literacy? No. Literary skills? No. Analytical reading? No. Language literacy? Yes, this is the correct or stable option. Next question number 140. Ashwin knows Odia from his birth and he studies English and Hindi. Based on the statement, find which of the following statement is not true. His Hindi learning is language learning. His English learning is a language learning. वैसे तो लैंग्वेज लर्निंग सभी हैं, लेकिन ये कंपेयर करवा रहा है, क्या करवा रहा है, कंपेयर। His Hindi learning is language learning. यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही कौन सी नहीं है। देखिए क्या है, मैं वही बात कह रहा था आपको कि हिज हिंदी लैंग्वेज इज लैंग्वेज लर्निंग, हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, हिज ओडिया लर्निंग इज लैंग्वेज
acquisition. Yes, his English learning is language acquisition. तो उसने मदर टंग किस में सीखी है? उड़िया में, इंग्लिश में नहीं थी ना, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, coming to next question, that is 141. Question number 141. So see here, instrumental motivation is when a person learns the language for being closer to the native speaker of the language. A person learns the language for their community's religious and social functions. A person learns the language for writing book. ठीक है. A person learns language for utilitarian reason like employment. Yes, this one is the correct answer. So option number 4 is correct answer. Here is a text, read the find which language register does the text belong to. तो हमें language register यहाँ पे select करना है. Here is a text. Suddenly after revolution किस में होता है? History में. It is seemed possible to change this in many parts of the world, including Europe and Asia. New ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed in India. Raja Rammohn Rai and Desrosiers talked of significance of the French Revolution. The development in these colonies in turn reshaped these ideas of societal change. तो देखिए क्या है, कौन सा लैंग्वेज है? पॉलिटिकल रजिस्टर, थोड़ी सी बात सही है ये कुछ. सोशल साइंस रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं है. साइंस रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं है. हमारे पास कौन से रह गए? 2 पॉलिटिकल रजिस्टर, ठीक है, लेकिन रेवोल्यूशन रजिस्टर. तो वेटेज किसको जाता है? रेवोल्यूशन रजिस्टर को, क्योंकि एक आंदोलन जो हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें जो सब प्रयोग किए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड बात है. तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3. Next question number 143. Subhas, a teacher of class 8th, regrets language assessment generally does not give importance to receptive skills. What does the man receptive skills? तो receptive skills क्या होती हैं बेटा? देखिए क्या है, listening, speaking, reading, writing. listening क्या है? receptive है. रीडिंग भी क्या है? रिसेप्टिव है. लेकिन जिसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपने पास से चीजें कहनी पड़ती हैं, वो प्रोडक्टिव स्किल होती है. कौन कौन सी है? राइटिंग है जैसे, और स्पीकिंग है. स्पीकिंग में भी क्या होता है? आपने सुना होगा थिंक बिफोर यू स्पीक. तो वहां पे भी सोच समझ के बोलना पड़ता है. सो कौन सी हुई आपकी स्किल? लिसनिंग एंड रीडिंग. तो ये क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 144. Top-down approach to listening involves listening to the gist of the speech, text or the audio. No. Listening to overall message of the text, speech or audio. Listening to each sound, words, phrase, clause and sentence. Top-down approach क्या है ये? टॉप डाउन अप्रोच. कैसी अप्रोच है? देखिए पहले क्या है? साउंड, फिर क्या है? वर्ड्स. साउंड का मतलब लेटर्स, लेटर से क्या बना? वर्ड, वर्ड से क्या बना? फ्रेज, फिर क्या बना? क्लॉजेस, और क्लॉजेस के बाद क्या बना? सेंटेंसेस. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 144. Paying attention to the specific details, no, this is not suitable for question 144. Suitable option is 3rd. Next, question number 145. Which of the following true of the study of the classical languages advocated by National Education Policy NEP 2020? Study of classical language as an option under 3 language. No. Study of classical language during the preparatory stage. No. Study of classical language as a core language of the at the secondary stage. थोड़ा बहुत ठीक है ये. Study of classical language as an additional option during the secondary stage.
This is the answer. So option number 4 is the correct answer for this question. Next, what are the stages involved in designing and doing a project work in language classroom? देखिए क्या है, forming groups, identifying the topic, planning, collection of data, interpretation of data, writing the draft and finalization of the report. तो forming groups, ठीक है, identifying the topic, planning, collection of data. तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, writing of the draft, ठीक है, writing of the draft, ये बाद में आना चाहिए था, पहले क्या आना चाहिए था, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आना चाहिए था, ठीक है, एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट. तो देखिए क्या है, इसमें जो आपका आंसर है वो किस में जाता है, ऑप्शन नंबर ए में. टीचर एंड लर्नर्स कैन डिजाइन एंड डू द प्रोजेक्ट वर्क एनीवे they want to know. Forming groups, planning, collection and data, interpretation of data, writing the draft, learning the topic and finalization of the report. So answer goes to option number 1. Now question number 147. See here, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्या है, which of the following is not true of language. लैंग्वेज के बारे में क्या सत्य नहीं है. लैंग्वेज इज रिपोजिटरी ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है. लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द सम ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये भी ठीक है. सम लैंग्वेजेस कैन ओनली कन्वे द साइंस एंड नो, किसने कहा, कोई भी लैंग्वेज जो बोनाफाइड लैंग्वेज है किसी भी कंट्री की, वो साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या कर सकती है, कन्वे कर सकती है. लैंग्वेज एक्सप्रेसेस आइडेंटिटी, ठीक है, लैंग्वेज एक्सप्रेसेस आइडेंटिटी. So answer goes to option number 4. Next question number 148. A test which aims to identify an individual student's specific areas of weakness and strength is known as, जिस टेस्ट के माध्यम से हम पता लगाते हैं विद्यार्थी के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट. क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 149. व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. देखिए क्या है, फॉरेन लैंग्वेज तो है ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी है. लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज, नो. एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, सहायक है ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. So answer goes to option number 1. Next question number 150. A teacher of class 7th wanted to give a writing task of writing description of a person. She went out the classroom and brought hawkers to her classroom with baskets. She requested him to be there about 7 minutes and then asked her learners to work in a pair and write a descriptions of the persons. What do you think the hawker in this activity is known as? मैम ने क्या कहा, देखिए एक हॉकर को बुला के लाई, बोली उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि आप 5 मिनट 6 मिनट क्लास में बैठ जाए और बच्चे आप पे क्या कुछ शब्द या लाइनें लिखने चाहते हैं. तो देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछता है वो एग्जामिनर, व्हाट डू यू थिंक द हॉकर इन दिस एक्टिविटी. जो हॉकर बाहर से आया है उसका क्या रोल है, हॉकर तो है ही है वो. मटेरियल्स, नो. पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी, टीचिंग असिस्टेंट नहीं है. मटेरियल है, स्टडी मटेरियल या एड कह सकते हैं हम उसको, लेकिन सबसे सुटेबल जो हमारा आंसर है तो वो क्या है, पार्टिसिपेंट है. किसमें, एक्टिविटी में भाग लिया जिसके माध्यम से बच्चों ने क्या किया है, उस एक्टिविटी को पूरा किया है. सो आई थिंक इट इज कंप्लीटेड. तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पेपर सेकंड के दोनों लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के हमने सभी क्वेश्चन हल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन हमारे ज्ञान के अनुसार ठीक होंगे. यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे फोन नंबर पर क्या कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है उस पर क्या है सेंड कीजिए क्वेश्चंस को. और यदि कोई किसी तरह का डिफरेंस होगा या आपको कोई कहीं पे कंफ्यूजन होगा, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे. तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही बहुत सारे अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।